सो गुड मॉर्निंग चॅम्पियन्स. आवाज येतोय माझा? प्लीज कन्फर्म करा एकदा. गुड मॉर्निंग. ओके. चल. चल. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. वी आर डीलिंग विद टॉपिक डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. और हमने अभी तक दैट इज एलिमेंट्री कैनाल की जो एनाटॉमी है उसके बारे में बात की है. आज मैं थोड़ा सा रिवाइज करके बात करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड, उसके बारे में. ओके. डाइजेशन ऑफ फूड. Now, digestion of food. So, दोस्तों, we are dealing with topic digestion and absorption. Now, what is meant by digestion? Digestion is the process of a breaking down of complex organic substances or compound into the simple absorbable form with the help of enzymes or by mechanical process. इसे कहते हैं digestion. Now, all these digestion and absorption, they are related with the nutrition. So nutrition means it is a process by which our body obtain the nutrient substances. उसे कहते हैं nutrition. फिर उसमें 5 स्टेप आते हैं. दैट इज अ ingestion means intake of food, digestion means breakdown of food, absorption means absorption of food, assimilation means utilization of that food for production of energy and other processes, and egestion means removal of undigested food. फिर हमने देखा कि ये जो डाइजेशन है दोस्तों एक्सटर्नल इंटरनल होता है. इफ डाइजेशन ऑकर आउटसाइड द बॉडी एक्सटर्नल डाइजेशन, इफ डाइजेशन ऑकर इनसाइड द बॉडी लाइक इन ह्यूमन बीइंग दैट इज इंटरनल डाइजेशन. फिर हमने देखा कि ये जो है दोस्तों दो मोड ऑफ एब्जॉर्प्शन है. वी एनिमल और फंगा आर हेटेरोट्रॉपिक मींस वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड सप्लाई. तो absorptive mode of nutrition is present in fungi, means fungi have external digestion and they releases their enzyme outside their body on that organic matter and causes the digestion of that organic matter into the simple absorbable form outside the body, and that simple absorbable form is absorbed. So this is called as the absorptive mode of nutrition. हम में क्या होता है, हम कोई भी enzyme बाहर बॉडी के बाहर नहीं रिलीज करते. We take that complex organic molecule or substances, okay, as a food during ingestion, and these complex organic compounds are broken down into a simple absorbable form in our digestive tract. तो there is a internal digestion होता है. तो this mode of nutrition इसे कहा जाता है होलोजोइक. होलो मीन्स कंप्लीट, कंप्लीट जो मॉलिक्यूल है उनको लेना. दैट इज कॉल्ड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. नाउ यहाँ पे दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारी, उसमें दो चीजें हैं. एक है एलिमेंट्री कैनाल, एक है एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड. Now, alimentary canal is a tube-like structure. Okay, anteriorly it is open as a
mouth and posteriorly it ends as a anus. Or between that दोस्तों, between that there are different structure. Mouth lead to oral cavity. Now that oral cavity is also called the buccal cavity. It has दोस्तों teeth and tongue. Tongue is a muscular movable organ present in the oral cavity, and that tongue is attached to the floral of oral cavity with the help of frenulum. और टंग के ऊपर दोस्तों पैपिले होते हैं अलग अलग, circumvallate papillae, fungiform papillae, filiform papillae और foliate papillae, and that papillae have taste bud. तो foliate papillae are absent in human being, ये याद रखो. और फिलिफॉर्म papillae में भी टेस्ट बर्ड नहीं होते हैं, और टेस्ट बर्ड के अंदर होते हैं गस्टैटो रिसेप्टर. दीज आर रिसेप्टर फॉर टेस्ट. तो टंग के ऊपर अलग अलग एरिया होते हैं, उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे. फिर आते दोस्तों टीथ. तो टीथ दो टाइप के हैं, टेम्पररी टीथ, परमानेंट टीथ. टेम्पररी टीथ में जो मिल्क टीथ, डेसिडियस टीथ, और वो 20 नंबर होते हैं दोस्तों. और टेम्पररी टीथ में दो प्रकार के दांत नहीं आते, बोथ प्रीमोलर एंड थर्ड मोलर, ये नहीं होते हैं, इसलिए 20 है. और परमानेंट टीथ में सब टीथ गायब हो जाते हैं और फिर से एक बार आते हैं, और वो परमानेंट रहते हैं लाइफ टाइम, उन्हें कहते हैं परमानेंट टीथ. तो उनमें वो 32 नंबर के हैं दोस्तों. नाउ थिकोडेंट डेंटेशन मींस दैट each tooth is embedded in the socket of jawbone, उसे कहते हैं थिकोडेंट डेंटेशन. And then diphoident dentation means that is a two set of teeth arises in a single life, उसे कहते हैं diphoident teeth. और ऐसे कितने हैं दोस्तों? 20 teeth are diphoident teeth. और मोनोफायोडेंट टीथ मींस वो सिर्फ एक ही बार आते हैं, और मोनोफायोडेंट टीथ है 12, बोथ प्रीमोलर एंड थर्ड मोलर. तो ये हो गया 12. फिर हमने देखा है हेटेरोडेंट डेंटेशन. तो है दोस्तों डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन मैमल. इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग बट ऑफ मैमल. हेटेरोडेंट डेंटेशन तो होते दोस्तों ICPM मोदी मींस आई म्हणजे इंसिजर, सी म्हणजे कैनाइन, PM मींस प्रीमोलर और मोदी मींस मोलार. तो याद रखो दोस्तों. नाउ डेंटल फार्मूला इन अडल्ट तो वो होता है 2123 अपॉन 2123. नाउ व्हाट इज मीन बाय डेंटल फार्मूला? इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ अपर एंड लोअर जॉ. तो ये डेंटल फार्मूला हो गया अडल्ट का 2123 2123. नाउ व्हाट इज द डेंटल फार्मूला इन चिल्ड्रन? तो दो आएंगे दोस्तों, दैट इज 2102 और 21 अपॉन 2102, या फिर 212 अपॉन 212. तो 212 अपॉन 212 इज द मोस्ट एक्यूरेट आंसर. ये हमने देखा. फिर दोस्तों फैरिंग्स के बारे में देखा. कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड, एंड इट इज डिवाइडेड इनटू नेसोफैरिंक्स, ओरोफैरिंक्स एंड लैरिंगोफैरिंक्स. Nasopharynx is the part of pharynx behind the nasal cavity. Oropharynx is the part of pharynx behind the oral cavity, और laryngopharynx is the part of pharynx near to larynx. फिर हमने देखा दोस्तों कि pharynx is a common passage for food and air. Now larynx is a sound box, or it is just present just upper part of trachea, and that opening of larynx is called a glottis, which is covered by दोस्तों cartilaginous flap which is made up of elastic cartilage. उसका नाम है epiglottis, which prevent the entry of food into the larynx or trachea. ट्रकिया एक ट्यूब है दोस्तों, उसे कहते हैं विंड पाइप, लोकेटेड एंटीरियरली, इस साइड पे होती है, और उसके पीछे इसोफेगस होती है. इट इज अ थीन, एक लॉन्ग थीन ट्यूब होती है दोस्तों, विच इज रनिंग थ्रू द नेक, thorax and diaphragm and open into a J-shaped organ called as a stomach. There is a gastroesophageal sphincter present between esophagus and stomach, also called the cardiac sphincter, which prevent the entry of gastric juice, okay, into the esophagus. Now stomach एक J shaped organ है दोस्तों. It has a 4 part: fundus, cardiac, body and pyloric. Now esophagus open into the cardiac part of stomach, and body is the largest part of stomach. Now stomach has also another sphincter called the pyloric sphincter, and it is present between stomach and duodenum, and it prevents the backward flow of food from duodenum into stomach. Now small intestine दोस्तों, small intestine has a 3 part, that is a DJI. It is named as a small because it has a small lumen. तो फर्स्ट पार्ट इज डिओडेनम, सेकंड पार्ट इज अ जजुनम, एंड थर्ड पार्ट इज अ इलियम. जो डिओडेनम है इट इज अ शी शेप्ड पार्ट होता है दोस्तों. जजुनम इज अ मिडल एंड कॉइल्ड पार्ट होता है, मिडल एंड कॉइल्ड पार्ट. और इलियम ये टर्मिनल और हाईली कॉइल्ड पार्ट होता है, दैट इज द इलियम. डिओडेनम मेनली डी फॉर डिओडेनम, डी फॉर डाइजेशन, एंड जजुनम एंड इलियम उनका काम होता है एब्जॉर्प्शन. फिर हमने देखा लार्ज इंटेस्टाइन. तो लार्ज इंटेस्टाइन के बेसिकली 3 पार्ट है, कोलोन, सिकम, कोलोन एंड रेक्टम. तो जो सिकम है दोस्तों, इट इज अ ब्लाइंड सैक व्हिच हैव सम symbiotically associated bacteria like E. coli which help in digestion, also help in production of vitamin K. And that cecum have दोस्तों a small narrow finger like projection called the vermiform appendix, which is a vestigial or non-functional organ with respect to digestion, but it is a functional with respect as a lymphatic tissue. Now ileum open into cecum with the help of ileocecal wall, and again that ileocecal wall prevent the backward flow of food
into the ileum. Now सीकम के बाद आता है दोस्तों कोलॉन. कोलॉन 4 टाइप के हैं. राइट साइड पे असेंडिंग कोलॉन, हॉरिजॉन्टली ट्रांसवर्स कोलॉन, और लेफ्ट साइड पे 2 डिसेंडिंग कोलॉन और सिग्मॉइड कोलॉन. एंड नाउ सिग्मॉइड कोलॉन ओपन इनटू द रेक्टम. रेक्टम इज द साइट ऑफ टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फीकल मैटर. और फिर रेक्टम ओपन इनटू दोस्तों एनस. तो ये है एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल में कुछ और बात है, दैट इज पियर पैचेस आर प्रेजेंट इन इलियम. Okay, haustoria are part of large intestine. These are the associated with large intestine. For digestive gland, there are 3 digestive glands: salivary gland, liver, and pancreas. Salivary gland, there are 3 pairs of salivary gland. Okay, on each side of buccal cavity. They are located on the outer side of buccal cavity. पहली है parotid gland. It is the largest salivary gland located on the cheek on both sides. फिर है दोस्तों submaxillary और submandibular gland located below the mandible or lower jaw, or sublingual gland located below the tongue. Now duct of parotid gland is called the Stenson's duct. Duct of submaxillary gland is called the Wharton's duct, and duct of दोस्तों sublingual gland is called the Remenus duct. Remenus duct ये हमने देखा है. That is the maximum saliva secreted by submaxillary gland. फिर हमने देखा दोस्तों liver. तो liver is the largest exocrine और largest overall gland है. Weight है 1.2 to 1.5 kilogram, located on the right upper abdominal cavity. Now ये जो liver है दोस्तों, it has a 2 lobe, right lobe and left lobe. और liver से फिर liver is the site of synthesis of bile और many metabolism occur in liver. तो right lobe से एक duct आती है, उसे कहते हैं right hepatic duct. Left lobe से एक duct आती है, उसे कहते हैं left hepatic duct. And they combine to form दोस्तों common hepatic duct. Now common hepatic duct और एक दूसरा स्ट्रक्चर है gall bladder. Gall bladder की जो है, gall bladder is a thin muscular sac. उसका फंक्शन है स्टोरेज एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बाइल. उसके डक्ट का नाम है सिस्टिक डक्ट. नाउ दैट सिस्टिक डक्ट एंड कॉमन हेपेटिक डक्ट ज्वाइन टुगेदर फॉर्म दोस्तों सीबीडी, कॉमन बाइल डक्ट. नाउ कॉमन बाइल डक्ट कंबाइन विद द पैनक्रियाटिक डक्ट. पैनक्रिया इज अनदर ऑर्गन व्हिच हेल्प इन डाइजेशन, एंड दैट पैनक्रियाटिक डक्ट कंबाइन विद दोस्तों कॉमन बाइल डक्ट टू फॉर्म हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट. नाउ हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट ओपन इनटू द duodenum, but before the opening it has some wider part, उसे कहते हैं ampoule of Vater, or the opening of that hepatopancreatic duct is guarded by sphincter of Oddi. ये हमने देखा है दोस्तों. फिर हमने बात की कि जो पैनक्रियाज है, इट इज कंपाउंड और हेटेरोक्राइन ग्लैंड है. एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों पार्ट होते हैं. एक्सोक्राइन मींस डक्ट वाला पार्ट है, एंडोक्राइन मींस डक्टलेस ग्लैंड. तो एक्सोक्राइन पार्ट सीक्रेट अल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस व्हिच कंटेन एंजाइम लाइक ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, न्यूक्लियेजेस, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज. एंड ये जो एंडोक्राइन पार्ट है, इसे कहते हैं दोस्तों आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. देयर आर 1 to 2 millions number of islets of Langerhans present in pancreas, and they occupy nearly 1 to 2% areas of pancreas. उसके 3 इंपॉर्टेंट सेल है, दैट इज अल्फा सेल, बीटा सेल एंड डेल्टा सेल. अल्फा सेल सीक्रेट ग्लूकागॉन नाम का हार्मोन, एंड ग्लूकागॉन इंक्रीजेस ब्लड शुगर लेवल. बीटा सेल सीक्रेट दोस्तों इंसुलिन नाम का हार्मोन, इंसुलिन डिक्रीजेस ब्लड शुगर लेवल. एंड डेल्टा सेल सीक्रेट सोमेटोस्टैटिन and which inhibit the release of insulin and glucagon. इतना डिस्कस किया आपने. कैसा लगा आपको ये रिवीजन? कैसा लगा आपको ये रिवीजन? ये आपने ऐसा करना चाहिए. ये कैसा लगा आपको रिवीजन? सुन रहे थे आप? ओके, कैसा लगा ये? दिस इज द वे. ये बोलते आता, ये तुम्हाला जमलं पाहिजे. दिस इज द वे. किती वेळ लागला? 10 ते 15 मिनिट. प्रत्येक वेळेस एक पार्ट संपला की ते परत एकदा 15 मिनिटात रिवाइज कराल. आज एक पार्ट संपलाय, दॅट इज द अनाटॉमी ऑफ एलिमेंटरी कॅनल. म्हणून ते आज मी सर्व रिवाइज केलं. आता डायजेशन ज्यावेळेस संपल त्यावेळेस मी पूर्ण डायजेशन रिवाइज करेल. त्याला 15-20 मिनिट लागतात. ऍब्झॉर्प्शन ज्यावेळेस संपल त्यावेळेस पूर्ण ऍब्झॉर्प्शन, आणि ज्यावेळेस सगळे डिसीजेस संपतील त्यावेळेस सगळे डिसीजेस. नाउ प्लीज पे अटेंशन. नाउ प्लीज पे अटेंशन. समझते का? नाउ लक्ष्य द्या आता. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप ना ये करते समय, जब मैं नेक्स्ट टाइम रिवाइज करूंगा ना, तो आप थोड़ा सा आपके नोटबुक जो है सामने रखो. जो बच्चे नए हैं उनको शायद ये समझ में नहीं आएगा, पर दोस्तों रिवीजन का इंपॉर्टेंस मैं बताना चाहूंगा. मुझे ना पैनक्रियास के बारे में एक स्ट्रक्चर दिखाना है. मुझे पैनक्रिया के जो डक्ट है उनके बारे में थोड़ा सा लिखना है. बाकी शुरू करेंगे डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में. नाउ पैनक्रिया जो क्या है दोस्तों, पैनक्रिया ये क्या है? पैनक्रिया मान लो ये है डिवोडेनम, मान लो ये है डिवोडेनम, और ये सी शेप्ड होता है. अगर आपके पास पुराना एनसीईआरटी है तो वहां पे यू शेप्ड दिया होगा, वो गलत है. तो सी शेप्ड होता है दोस्तों, सी शेप्ड. और यहाँ पे ये पैनक्रिया ऐसे लोकेटेड होती है, ये ऐसे पैनक्रिया.
ये है पैनक्रिया। नाउ पैनक्रिया में दोस्तों दो डक्ट है। एक जो डक्ट है, याद रखो, ये पैनक्रिया है, इसमें दो डक्ट है। एक जो डक्ट है दोस्तों, द डक्ट इज ओपनिंग इनटू द डिओडेनम। कसं आहे जरा लक्ष द्या आता। नाउ ये ऊपर से आ रहा है दोस्तों सीबीडी, इसका नाम है कॉमन बाइल डक्ट। ये है सीबीडी, कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, सीबीडी, कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, सीबीडी। और यहां से एक मेन पैनक्रियाटिक डक्ट जा रही है जिसका नाम है डक्ट ऑफ और विरसंग डक्ट। क्या नाम है इसका? विरसंग डक्ट। नाउ दोस्तों ये जो कॉमन बाइल डक्ट है कंबाइन टुगेदर विद दिस पैनक्रियाटिक डक्ट टू फॉर्म दोस्तों हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। क्या बनेगा? हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, ये बनता है हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। नाउ प्लीज पे अटेंशन। सो दिस इज अ कॉमन बाइल डक्ट, ब्लैक वाली ये है कॉमन बाइल डक्ट, और ये है दोस्तों दैट इज अ पैनक्रियाटिक डक्ट which is a main pancreatic duct, which is a main pancreatic duct, or they join together to form दोस्तों that is a HPD, म्हणजे hepatopancreatic duct, hepatopancreatic duct. This is HPD, hepatopancreatic duct, hepatopancreatic duct. Now please pay attention. और ये जो पैनक्रियाटिक डक्ट है, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट दोस्तों, it carries a pancreatic juice into the duodenum. नाउ ये हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट है, इसकी ओपनिंग इज गार्डेड बाय दोस्तों, याद रखो यहां पे है दैट इज अ स्पिंक्चर ऑफ ऑडी। कौन सा स्पिंक्चर है? दैट इज अ स्पिंक्चर ऑफ ऑडी। स्पिंक्चर ऑफ ऑडी होता है कहां पे? एट द ओपनिंग ऑफ हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, एमसीक्यू। और ये थोड़ा सा वाइडन पार्ट होगा, वाइडन पार्ट है, उसे कहते हैं एम्पुल ऑफ वाटर। हाँ, इसे कहते हैं दोस्तों एम्पुल ऑफ वाटर, एम्पुला ऑफ वैटर। एम्पुला म्हणजे वाइडर पार्ट, वैटर साइंटिस्टचं नाव आहे, एम्पुल ऑफ वाटर। और एक दोस्तों यहाँ पे और एक स्पिंक्चर होता है, और एक स्पिंक्चर है, और इसका नाम है स्पिंक्चर ऑफ जो बाइडेन। स्पिंक्चर ऑफ दोस्तों जो बाइडेन, जो बाइडेन ने निस्ता बाइडेन, स्पिंक्चर ऑफ बाइडेन। जो बाइडेन पता है आपको कौन है? यूएसए के प्रेसिडेंट है। तो स्पिंक्चर ऑफ बाइडेन इज प्रेजेंट एट दोस्तों ओपनिंग ऑफ, कहां पे होता है? ओपनिंग ऑफ सीबीडी, कॉमन बाइल डक्ट इनटू पैनक्रियाटिक, वहां पे स्पिंक्चर ऑफ बाइडेन। ये क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, पर मान के चलो कि ये और एक स्पिंक्चर होता है, स्पिंक्चर ऑफ बाइडेन एट द ओपनिंग ऑफ सीबीडी। नाउ पैनक्रिया में आपने कहा सर कि पैनक्रिया में दो डक्ट है, और कहां डक्ट है? खाली आपने बोला, पर दिखाओ ना कहां पे, दिखाता हूं। सपोज मान लो ये थोड़ा सा बड़ा करता हूं मैं पैनक्रिया। तो ये जो मेन डक्ट है दैट इज ज्वाइन विद द सीबीडी एंड फॉर्म हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, ये अलग है। और दूसरों एक छोटी सी डक्ट होती है जिसका नाम है डक्ट ऑफ सैंटोरिनी, एंड दिस डक्ट ऑफ सैंटोरिनी डायरेक्टली ओपन इनटू द डिओडेनम। किसी के साथ कंबाइन नहीं होती है, कुछ भी नहीं होती है। दिस इज द डक्ट ऑफ सैंटोरिनी व्हिच इज डायरेक्टली ओपन इनटू द डिओडेनम। नाउ ये जो ऊपर वाली डक्ट है दोस्तों, इसे कहते हैं विरसंग डक्ट और डक्ट ऑफ विरसंग। डक्ट ऑफ विरसंग मीन्स ये विरसंग नाम के साइंटिस्ट की नहीं है, उसने सिर्फ उसे डिस्कवर किया है इसलिए नाम दिया है डक्ट ऑफ विरसंग। ये मेन डक्ट है जो पैनक्रियाटिक जूस कैरी करेगी, ये मेन डक्ट है। और ये छोटी सी और वो डायरेक्टली ओपन इनटू डिओडेनम। और ये है डक्ट ऑफ सैंटोरिनी, जो कि सैंटोरिनी ये डायरेक्टली ओपन होती है। ये एसेसरी डक्ट है, नॉन फंक्शनल है, कुछ काम नहीं उसका, जस्ट है। सो दीज आर द डक्ट ऑफ पैनक्रियाज। ये नॉन फंक्शनल है दोस्तों। ये क्या है? नॉन फंक्शनल है। सैंटोरिनी वाली डक्ट नॉन फंक्शनल है, क्वेश्चन आएगा। और डक्ट ऑफ विरसन फंक्शनल कौन है? अरे W फॉर वर्किंग कौन है? W फॉर वर्किंग, W फॉर विरसन, ये फंक्शनल है। ये हमसे क्यों? ये फंक्शनल है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर दोस्तों? और ये है दैट इज अ स्पिंक्चर ऑफ बाइडेन
प्रेजेंट एट द सीबीडी। और थोड़ा सा क्लैरिटी, और थोड़ा सा डिटेल में चले गए, डिटेल में चले गए। इज दैट ओके? इज दैट ओके? दिस इज स्लाइड नंबर 1। आज कौन ले रहा है स्क्रीनशॉट? आज कौन घेते स्क्रीनशॉट? सांगा जरा, कोण घेतं आज? ओके ओके, शिवानी, बर ठीक आहे, शिवानी, ओके, काय प्रॉब्लेम नाही, शिवानी आज। हाँ चला, हर एक तनिया बेटा, हर एक स्ट्रक्चर का यूज यही है टू मेंटेन द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ आइदर फूड और आइदर दैट फ्लूइड, टू मेंटेन द यूनिडायरेक्शनल फ्लो। यहां से जो बाइल आ रहा है कॉमन बाइल डक्ट से, वो वापस ना चला जाए, तो इसको दोस्तों ये हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट में जब आएगा तो यहां से वो वापस ना जाए, इसलिए वो बाइल आने के बाद क्लोज होगा। बाइल जब आएगा तब ओपन, बाइल अंदर आ गया क्लोज। इज दैट ओके? चलो आगे बढ़ते हैं और इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई में हमेशा याद, हमेशा हमने ना, आपको मैं बताता हूँ दोस्तों, हमने दुनिया में हमेशा याद रखो कभी भी, ओके, कुछ जो बेसिस है ना, हम जब स्कूल भी नहीं गए थे, आपको अगर याद होगा तो आपके मम्मी ने, पापा ने या किसी ने भी आपके सामने ये ऐसे स्क्वायर, ट्रायंगल, ओके, रेक्टेंगुलर, ओके, सर्कल, बराबर है कि नहीं, या फिर क्या बोलेंगे उसे, दैट इज अलग अलग, ये 4 मेन शेप है, ओके, स्क्वायर, ओके, ट्रायंगल, रेक्टेंगुलर, या ऐसा, ये शेप हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड में देखे थे। यस और यस और नो, यस और नो बोलो, यस और नो, देखे थे या नहीं, देखे थे या नहीं बोलो, है ना। स्कूल में जाने से पहले से हमें पता है कि ये ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, ये सर्कल है, तो इसका यूज करो टू मेक अ हाइपोथेटिकल डायग्राम। ये हमारे दिमाग में इतने ज्यादा फिक्स हो चुके हैं कि आपने कभी भी ये शेप आपने कभी नहीं देखा फर्स्ट स्टैंडर्ड में, ये पैनक्रिया वाला शेप कभी नहीं देखा, तो कभी नहीं देखा, तो ये अभी देख रहे हो आप कि यार पैनक्रिया इस शेप का होता है, तो इसको ना कोई बात नहीं, रहने दो। तो हमेशा इन ट्रायंगल, ये जो 4 अपने साथी है जो हमारे फर्स्ट स्टैंडर्ड से हमारे साथ है, तो इसको यूज करते हैं, हमेशा इसको यूज करो। और एक हो दोस्तों, सपोज ट्यूब, जैसे कि क्या बनता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर असं ना तसं, फॉर एग्जाम्पल, चलो देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। मान लो दोस्तों ये है डिओडेनम, मान लो ये है डिओडेनम, ऊपर से एक ट्यूब आ रही है जिसका नाम है सीबीडी, जिसका नाम क्या है, सीबीडी, जिसका नाम है सीबीडी। दोस्तों यहां से ये है पैनक्रियास, वाओ, ये है पैनक्रियास, कितना सिंपल होता है, ये है पैनक्रियास, ये है डिओडेनम, इसका नाम क्या है, डिओडेनम, इसका नाम है डिओडेनम, ये है डिओडेनम, ओके, ये है डिओडेनम। ये क्या है दोस्तों, सीबीडी, दैट इज अ कॉमन बाइल डक्ट, क्या है, कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट। नाउ ये क्या है दोस्तों, ये है पैनक्रियास, ये क्या है, पैनक्रियास। नाउ हमने ये देखा कि पैनक्रिया में से एक डक्ट आती है जिसका नाम है दोस्तों डक्ट ऑफ विल्सन, क्या नाम है उसका, डक्ट ऑफ विल्सन। थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, इसकी लेंथ वगैरह यहाँ पे मायने नहीं रखते, यहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्चर मायने रखता है। और ये जो डक्ट ऑफ विल्सन है दोस्तों, कंबाइन विद सीबीडी और मेन पैनक्रियाटिक डक्ट कंबाइन विद सीबीडी टू फॉर्म दोस्तों हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, टू फॉर्म हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, और ये है फिर अपना हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। ये क्लियर है, कॉमन बाइल डक्ट, दिस इज अरे सॉरी, कॉमन बाइल डक्ट, दिस इज अ मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, ये है दोस्तों दैट इज अ मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, क्लियर है, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट। और इसका नाम क्या है, डक्ट ऑफ विल्सन। वर्किंग है, कौन सी वर्किंग है, कौन सी फंक्शनल है, डक्ट ऑफ विल्सन इज वर्किंग, और विच कंबाइन विद दोस्तों कॉमन बाइल डक्ट, विच कंबाइन विद कॉमन बाइल डक्ट टू फॉर्म, ये क्या है, इन दोनों का मिला के बन गया दोस्तों दैट इज अ हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। नाउ ये जो हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट है इसके साथ 2 एमसीक्यू रिलेटेड है।
ये है दोस्तों हेपेटो पैनक्रेटिक डक्ट। नाउ इसका जो ओपनिंग है, इसका जो ओपनिंग है दोस्तों डक्ट, बाइल डक्ट का, यहाँ बाइल आने के बाद वो वापस ना जाए इसलिए यहाँ पे एक स्पिंक्चर है, और उस स्पिंक्चर का नाम है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो स्पिंक्चर ऑफ बॉयडन। स्पिंक्चर ऑफ बॉयडन आप समझ जाएंगे, बी फॉर बॉयडन, बी फॉर बाइल डक्ट का स्पिंक्चर है बॉयडन, स्पिंक्चर ऑफ बॉयडन, बाइल डक्ट का स्पिंक्चर है। नाउ दोस्तों यहाँ पे ये जो अभी तो इसके बारे में कितने बात की, यह जो थोड़ा सा वाइडर पार्ट है इसका नाम है, इसका नाम है एम्पुला ऑफ वाटर, इसका नाम है एचपीडी का ये पार्ट है, दैट इज एम्पुला ऑफ वाटर नाम के साइंटिस्ट ने ये वाइडर पार्ट डिस्कवर किया था, उसके घर का नहीं है पर इसका नाम है एम्पुला ऑफ वाटर। और यहाँ पे जो गार्डिंग है दोस्तों इसे कहते हैं दैट इज सांगरे स्पिंक्चर ऑफ ऑडी, स्पिंक्चर ऑफ ऑडी, ऑडी गाड़ी है, ऑडी गाड़ी, स्पिंक्चर ऑफ ऑडी। ओके नाउ और एक कोई बिन काम की डक्ट है, नॉन फंक्शनल है। ओके एक नॉन फंक्शनल डक्ट, यहाँ से ऐसे छोटी सी डक्ट पैनक्रियास से निकल रही है और which is directly open into the duodenum, which is directly open into the duodenum, और इसका नाम है दोस्तों डक्ट ऑफ सैंटोरिनी। ये नॉन फंक्शनल है, इसका ज्यादा कुछ काम नहीं है। ओके ये है डक्ट ऑफ सैंटोरिनी, सैंटोरिनी। इसी में लिखने का कि नॉन फंक्शनल है, डायग्राम देखते ही पूरा मांजरा समझ में आना चाहिए। ओके ये नॉन फंक्शनल है। और वर्क ये वर्किंग है, विल्सन डक्ट वर्किंग है, विल्सन डक्ट फंक्शनल है। अभी बोलो, अभी ज्यादा क्लियरिटी है, अभी ज्यादा क्लियरिटी है, यस और नो, यस और नो दोस्त, यस और नो प्लीज। अब क्लियर है, इज दैट क्लियर? हो आप भी ऐसे यूज करोगे, आप भी दोस्तों ऐसे यूज करोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओके चलो थैंक यू। सो ये है डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और ये डक्ट सिस्टम आपको पता होना चाहिए। अगर कोई ये पहले से देख रहा है तो शायद उसको थोड़ा इश्यू आ जाएगा, ठीक है। ऑडी नाम है साइंटिस्ट का, ऑडी इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, ऑडी नेम ऑफ साइंटिस्ट। ये जो है वैटर नेम ऑफ साइंटिस्ट, ऑडी नेम ऑफ साइंटिस्ट, बॉयडन नेम ऑफ साइंटिस्ट। इन्होंने एक के स्पिंक्चर निकाला, खुद का नाम दे दिया। अरे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने 350 किले, किती 350 किले बांधले, एका किल्ल्याला नाव नाही महाराजांचं। बाबासाहेबांनी एवढं मोठं संविधान लिहिलं, कुठं नाव नाही की बाबासाहेब आंबेडकर, तर संविधान त्यांनी स्वतः लिहिलंय म्हणून लोक मानतात, पण असं त्यांनी कुठं नाव टाकलं खाली, कुठल्या ऍक्ट खाली माझा ऍक्ट आहे म्हणून नाही। लक्षात ठेवा, महात्मा फुलेंना मुलीचं शिक्षण सुरू केलं, कुठं नाव नाहीये। विवेकानंदांनी एवढं ज्ञान सांगितलं जगाला, एवढं जास्त म्हणजे असं कुठं हे नाही। साधी एक डक्ट काय शोधून काढते, साधी एक स्पिंक्चर काय शोधून काढते, तो डक्ट ऑफ सॅन्टोरिनी, डक्ट ऑफ विल्सन, बॉयडन स्पिंक्चर, स्पिंक्चर ऑफ ऑडी। अरे आपण ग्रेट आहोत, पण आपण स्वतःला त्या वेस्टर्न कल्चरच्या नावाखाली कमी समजतो। आपण ग्रेट आहोत या पृथ्वी तलावर। आलं लक्षात, त्यांचा शोध, त्यांच्या जगाचा शोध लागून एक 300-350 वर्ष झाले, तर आपल्याला 5000 वर्षापूर्वीची परंपरा आहे। पण तेवढंच महत्वाचं आहे की आपण जगाच्या पाठीवर कुठेतरी मागं पडलो आपण, म्हणून तसं आहे। पण आपण आता पुढे जाऊया तुमच्या स्वरूपाने, ठीक है। थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट शिवानी बेटा, सॅन्टोरिनीला काही स्पिंक्चर वगैरे नाही। ओके आगे बढ़ते, ठीक है। घेतला का स्क्रीनशॉट, यस और नो? केली वाटतं, घेतला का? हा ठीक आहे, डन। सांगत चला, मेसेज करत चला पटकन, ठीक आहे, म्हणजे ते कन्फर्म होऊन जाईल। नाव तर ते रिॲक्ट होत नाहीत, हे सगळे ज्यूस लक्षात ठेवा। काय होऊ लागले पुढे सांगतो तुम्हाला, डायजेशन काय कॉन्सेप्ट आहे, पुढे काय होतं तुम्हाला सगळं सांगतो, जरा लक्ष द्या। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है दोस्तों, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टमक का गैस्ट्रिक जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, ओके, अलॉन्ग विद दैट फूड। बाइल जो लीवर से आ रहा है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है। पैनक्रेटिक जूस जो आ रहा है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का एक खुद का जूस होता है, उससे कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस।
तो ये 4 जूस वहां पे मिक्स होते हैं दोस्तों, और उसमें अलग अलग एंजाइम है हर एक जूस में, बात करेंगे, और दे हेल्प इन डाइजेशन। तो वही जो प्रोसेस है बात करेंगे दोस्तों, दैट इज स्लाइड नंबर 3, डाइजेशन ऑफ फूड। नाउ व्हाट इज मीन बाय डाइजेशन ऑफ फूड? अब तक हमने देखा दोस्तों डाइजेशन ऑफ फूड, ये जो पूरा एलिमेंट्री कैनाल है इसको 3 बार देखेंगे। पहला बार देखा दैट इज एनाटॉमी, फिर अभी डाइजेशन कहाँ कहाँ होता है और कौन सा जो मॉलिक्यूल है उनका डाइजेशन होता है, और फिर एब्जॉर्प्शन देखेंगे दोस्तों। नाउ डाइजेशन ऑफ फूड ये क्या प्रोसेस है? डाइजेशन मान लो दोस्तों ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, दिस इज एन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, ये है दोस्तों कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स मींस मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल मॉलिक्यूल। कॉम्प्लेक्स इसलिए बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल मॉलिक्यूल। नाउ इट विल अंडरगो दोस्तों breakdown. It will undergo breakdown and produces a simple absorbable form. It produces a simple absorbable form. Simple organic compound. Complex से क्या बन रहे हैं? Simple organic compound बन रहे हैं। Complex से क्या बन रहा है दोस्तों? They are forming simple organic compound. They are forming simple organic compound. Complex से simple, that is digestion. Simple organic कंपाउंड जो कि एब्जॉर्ब हो जाए, ये होता है दोस्तों, इसे कहते हैं डाइजेशन। दिस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू द सिंपल ऑर्गेनिक फॉर्म व्हिच इज एब्जॉर्ब, इट इज डाइजेशन। एंड दिस डाइजेशन ऑकर आइदर बाय दोस्तों दो मींस, एक तो ये मैकेनिकल प्रोसेस है। मैकेनिकल प्रोसेस मींस that is a mastication, that is mechanical process। मूवमेंट, स्टमक में चर्निंग मूवमेंट होती है, ओके, रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन, उसकी वजह से फूड मिक्स होता है, तो ये मैकेनिकल प्रोसेस है, उसमें पेरिस्टाल्सिस आएंगे दोस्तों। इट इज अ मैकेनिकल प्रोसेस एज वेल एज बायोकेमिकल प्रोसेस भी है। बायोकेमिकल प्रोसेस मींस देयर इज अ रोल ऑफ एंजाइम। बायोकेमिकल्स मींस दीज आर द केमिकल प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो एंजाइम्स का रोल होता है, एंजाइम कॉजेस कन्वर्जन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू द सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म, उसे कहते हैं दोस्तों डाइजेशन। फॉर एग्जांपल, अगर पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड मींस, पॉली मींस सैकेराइड मींस शुगर, पॉली मींस मेनी शुगर कंबाइंड। फॉर एग्जांपल एक है दोस्तों स्टार्च। तो फाइनली इस स्टार्च का ब्रेकडाउन होकर क्या बनेगा? फाइनली दोस्तों इससे ब्रेकडाउन होकर बनेगा मोनोसैकेराइड, और जो मोनोसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड का मोनोसैकेराइड बनेगा, और दोस्तों वो मोनोसैकेराइड है ग्लूकोज। कौन सा मोनोसैकेराइड है? ग्लूकोज। दिस मसल पे वेट का ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज। स्टार्च का ब्रेकडाउन होकर बनेगा दोस्तों ग्लूकोज, स्टार्च का ब्रेकडाउन होकर बनेगा ग्लूकोज। ये है डाइजेशन। स्टार्च का ब्रेकडाउन होकर बनेगा ग्लूकोज। चेविंग म्हणजे चावणे वेगळी गोष्ट, पेरिस्टाल्सिस वेगळे, लक्ष द्या। जैसे कि प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका ब्रेकडाउन होके सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेंगे, वो है अमीनो एसिड्स। एमसीक्यू आपको पता होने चाहिए कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स क्या है। मान लो जैसे लिपिड और फैट, लिपिड्स दोस्तों ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो फैटी एसिड्स इसमें किससे बने होते हैं? फैटी एसिड एक अलग चीज है, लिपिड और फैटी एसिड। और ग्लिसरॉल एक अल्कोहल होता है, ये दोनों मिला के बनते हैं लिपिड्स। दोस्तों वैसे न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए, न्यूक्लिक एसिड जो है दोस्तों, डीएनए और आरएनए, इनका ब्रेकडाउन होकर बनते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, जो कि मोनोमर है। तो फाइनली अल्टीमेटली डाइजेशन में क्या होता है दोस्तों? जो पॉलीमर सब्सटेंसेस होते हैं उनका ब्रेकडाउन होके मोनोमर बनते हैं, तो यह है दैट इज अ पॉलीमर और मोनोमर का कॉन्सेप्ट। यह है दोस्तों डाइजेशन। और ये डाइजेस्ट होने वाले सब्सटेंसेस ही हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं। वाई डाइजेशन की जरूरत क्या है? क्योंकि हम प्रोटीन या फिर पॉलीसैकेराइड या फिर लिपिड या न्यूक्लिक एसिड एज इट इज, हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इंटेस्टाइन में, स्टमक में, माउथ में, जो हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन है, इट डज नॉट एब्जॉर्ब द लार्जर मॉलिक्यूल।
जो ये लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं दोस्तों, उनको स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है। लार्ज मॉलिक्यूल जो है, जो लार्जर मॉलिक्यूल है, उनको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है। जो लार्जर मॉलिक्यूल है उनको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है, ताकि वो इजीली एब्जॉर्ब हो सके। और दिस इज द टीचिंग, दिस इज रिलेटेड विद द टीचिंग दोस्तों। टीचर क्या करता है, जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है उसको छोटे 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 कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन करता है। जो एनसीईआरटी में कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी है उसको सिंपल फॉर्म में करता है। तो टीचर हेल्प इन डाइजेशन एंड, ताकि वो आपको इजीली एब्जॉर्ब हो, ताकि वो नॉलेज आपको इजीली ग्रास्प हो। यही तो है टीचिंग। टीचर क्या करता है, टीचर एक्चुअली एक्ट एज ए एंजाइम। टीचर कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट इनटू द सिंपल थिंग्स। इट कन्वर्ट दैट कॉम्प्लेक्स, जैसे कि एंजाइम कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू द सिंपल ऑर्गेनिक। टीचर भी तो वही करता है दोस्तों, ताकि स्टूडेंट को इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। और स्टूडेंट क्या करते हैं, कभी कभी डायरेक्टली एज इट इज ये कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को रटने की कोशिश करते हैं। ऐसा कभी मत करो, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। Okay, ask this concept with the teacher. Teacher is a bio-catalyst. Teacher is catalyst in your life. आपको डायरेक्ट 12 साइंस या 11 साइंस से, ओके, with the help of teacher you can enter into the medical science. मैंने बोला कि टीचर का ही सबसे बड़ा रोल है। सबसे बड़ा रोल तो आपका है। हमारा रोल तो 20 या 15% है, 20% to 15%। आपका रोल है 80% to 85%। अगर कोई बच्चा एमबीबीएस में जाता है तो उसका क्रेडिट उसको जाना चाहिए। जब आपका नंबर लगेगा दोस्तों एमबीबीएस में, और सपोज आपको ऑल इंडिया रैंक 1 आता है या फिर सिंगल डिजिट आता है, तो बहुत सारे न्यूज चॅनल, एबीपी माझा, तुझा, आमचा, ठीक आहे, लोकमत, जनमत, एकमत असले कितीतरी, जे 24 तास, 12 तास, 6 तास हे असले न्यूज चॅनल येतील, किंवा आणखी मोठमोठे न्यूज चॅनल येऊ शकतात। आज तक, कल तक, परसों तक, साहब आपके घर में आ जाएंगे, साहब ऑल इंडिया रैंक 1 निकालो तो सही। तो पूछेंगे अलग अलग सवाल, और एक सवाल हमेशा पूछेंगे आपको कि आपको ये जो सक्सेस मिला है इसका क्रेडिट किसको जाता है। तो बच्चे वही टोन लगाते हैं, ओके, माय पेरेंट्स और माय टीचर एंड माय फ्रेंड्स। गलत। सबसे पहले तो बोलो आई वांट टू थैंक टू माई सेल्फ। मुझे खुद को धन्यवाद देना है कि मुझे मेरे ये दिमाग में आया, ओके, मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे इतना सारा पढ़ाई करना चाहिए, ये मैंने खुद सोचा, और सोचने के बाद मैंने उसे इम्प्लीमेंट किया। और तो पहले तो मैं खुद का थैंक यू करना चाहूंगा, और फिर है पेरेंट्स जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, ओके, मेरे इस जर्नी में। और फिर कहीं जाके आते हैं टीचर्स, और फिर आपके दोस्त। सबसे इंपॉर्टेंट आप हो। इसका मतलब क्या है, ये जब तक आप नहीं जानोगे तब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे। जो भी हो रहा है, पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई नहीं हो रही है, टीचर पेरेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इट्स बिकॉज ऑफ यू। आप रिस्पॉन्सिबल है। और जब तक आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो क्रेडिट भी खुद का लेना है, खुद को क्रेडिट लेना है जब सक्सेस मिलेगा तो, और काम भी खुद ही करना है। हम है आपके सपोर्ट में। सो बात करते हैं दोस्तों, डाइजेशन इज द बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच a complex organic compound are broken down into a simple absorbable form with the help of enzyme in digestive tract, where दोस्तों larger molecule are broken down into smaller molecule, where polymers are broken down into monomer, where polysaccharide are broken down into monosaccharide, protein are broken down into amino acid, lipid are broken down into fatty acid and glycerol, and nucleic acid are broken down into दोस्तों nucleotide। is that clear? आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर है? स्क्रीनशॉट। ग्लिसरॉल एक अल्कोहल है, लिखो। कार्बोहाइड्रेट मींस पॉलीसेक्राइड और मोनोसेक्राइड दोनों आते हैं। थैंक यू शिवानी, थैंक यू। तो इसके लिए लगेंगे, इन सब के लिए लगेंगे दोस्तों, ये ऐसे में होता है, इसके लिए लगेंगे एंजाइम, इसके लिए लगेंगे एंजाइम, और अलग अलग एंजाइम। पॉलीसेक्राइड को ग्लूकोज करने में अलग एंजाइम, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने में अलग एंजाइम, लिपिड को फैटी एसिड, और ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल एक अल्कोहल है दोस्तों। ग्लिसरॉल क्या है? एक अल्कोहल है, याद रखो, एक टाइप का अल्कोहल है ग्लिसरॉल। ओएल आ रहा है ना, तो अल्कोहल है। न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक डाउन करते हैं न्यूक्लियोटाइड में, उसके लिए अलग अलग एंजाइम। अभी ले लो स्क्रीनशॉट बेटा शिवानी। अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्म असतं ग्लुकोज,
ठीक है, ग्लूकोज। चलो घेतलं का स्क्रीनशॉट? हाँ हाँ, महत्वाचं। चलो, तो ये बेसिक आपको आना चाहिए। अभी ये होता कहाँ, साइट ऑफ डाइजेशन क्या है? साइट ऑफ डाइजेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइट्स ऑफ डाइजेशन, कहाँ कहाँ पे डाइजेशन होता है, कहाँ शुरू होता है, कहाँ पे एंड होता है, ये सब सिंपल से क्वेश्चन है। और हर एक पार्ट में जाएंगे कि वहां क्या क्या होता है, हर एक पार्ट में डिटेल में जाएंगे और देखेंगे कि कहाँ क्या होता है दोस्तों। सो ये हो गया डाइजेशन की डेफिनेशन। ओके, समझ में आ रहा है? तो बात करो दोस्तों, दैट इज अ साइट्स ऑफ डाइजेशन। तो क्या क्या साइट्स हैं? नंबर वन, दैट इज 4 साइट है। माउथ, माउथ में क्या डाइजेस्ट होता है, कौन से एंजाइम होते हैं? फिर है स्टमच, अकॉर्डिंग टू तात्या साहेब लाने, तुम्ही बघत असता न्यूज मध्ये, आता ह्या माणसाला स्टमक म्हणता येत नव्हतं, आज ते डायरेक्टर आहेत। हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, मेडिकल सायन्स मेडिकल एज्युकेशन डायरेक्टर आहेत, महाराष्ट्र राज्याचे सल्लागार आहेत। ओके, कोविड-19 टास्क फोर्स मध्ये खूप सारा बराच रोल आहे। जे जे चे डीन होते ग्रँट मेडिकल कॉलेज अँड जे जे हॉस्पिटल अंबेजोगाईमध्ये, त्यांनी यूजी केलंय आणि मला वाटतं इथनं पीजी केलं औरंगाबादमधनं, अंबेजोगाईमधनं, औरंगाबादमधनं यूजी, अंबेजोगाईमधनं पीजी। ऑप्थल्मॉलॉजिस्ट आहेत, कितीतरी लाखो सर्जऱ्या कॅटरॅक्टच्या त्यांच्या नावावर आहेत। ते ह्या स्टमकला स्टमच म्हणले होते। लँग्वेज प्रोनाउन्सिएशन हे खूप सेकंडरी आहेत मुलांना, कोणी मराठी मीडियमचे असताल तर टेन्शन नका घेऊ, यू कैन लर्न एवरीथिंग एक्चुअली। ये स्टमक में क्या होता है देखेंगे। नंबर 3, स्मॉल इंटेस्टाइन। वाओ, ये तो प्रिंसिपल साइट है डाइजेशन का, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज द मेन साइट ऑफ डाइजेशन। और नंबर 4 पे होता है दोस्तों लार्ज इंटेस्टाइन। मैंने कुछ मिस कर दिया है, इंटेस्टाइन कोई मुझे बता सकता है? मैंने यहाँ पे कुछ मिस किया है। सो दीज आर द साइट ऑफ डाइजेशन, माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। कौन से पार्ट मैंने मिस किए हैं एलिमेंट्री कैनाल के, कोई मुझे बता सकता है क्या? नहीं, वो तो ग्लैंड है, वहां पर डाइजेशन नहीं होगा। बहुत ही बढ़िया अभिषेक, अथर्वा, आयुष, रसिका, ईसोफेगस। और एक पार्ट मिस किया है, आई डोंट नो, वाह बहुत बढ़िया। प्रसाद कवर, और वाह वाह, प्रसाद ने बोल दिया, प्रसाद ने बोल दिया, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। शैश, फैरिंग्स। सो दोस्तों, ये जो फैरिंग्स होते हैं, दे डू नॉट सीक्रेट एनी एंजाइम। फैरिंग्स एंड ईसोफेगस जो है, ईसोफेगस, ओके, यही पे लिख देता हूं, फैरिंग्स एंड ईसोफेगस, ओके, डू नॉट रिलीज any enzyme, do not secrete any enzyme and have, कैपिटल में लिखता हूं, नो रोल। ऐसा लिखना चाहिए बीच बीच में, नो रोल इन डाइजेशन। ए बाबा हे वेगळे रे बाबा, हे वेगळे, नो रोल इन डाइजेशन, समझे? इनका कोई रोल नहीं, दे जस्ट हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम ओरल कैविटी इनटू द स्टमक। ओके, they just help in transfer of food, transfer of food transfer of food from oral cavity or buccal cavity, transfer of food from oral cavity or buccal cavity to stomach। फिनिश, इतना ही काम है, बाकी का सबका रोल है। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, दैट इज द मेन ऑर्गन ऑफ डाइजेशन, सर स्मॉल इंटेस्टाइन, ये मेन ऑर्गन है, मेन साइट है ऑफ डाइजेशन एज वेल एज एमसीक्यू। चला शब्द वापरलाय, प्रिंसिपल साइट ऑफ डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, ये है दोस्तों, दैट इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, ओरल कैविटी और बकल कैविटी। माउथ यानी यहाँ पे बकल कैविटी, माउथ यानी दोस्तों दैट इज बकल कैविटी को ही माउथ कहा गया है। बकल कैविटी यानी ओरल कैविटी को ही यहाँ पे माउथ किया है। तो वन बाय वन बात करेंगे, व्हाट इज द role of mouth in digestion। okay, role of mouth in digestion, is that okay? okay, is that clear? आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट,
स्क्रीनशॉट समजते हैं आता यायला लागले लक्षात. तो माउथ में क्या होगा, स्टमक में क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, ये डिटेल में जाएंगे. ओके चल चल. ओके सो दोस्तों टाइटल है दैट इज आई थिंक स्लाइड नंबर 5, दैट इज रोल ऑफ स्टमक, रोल ऑफ स्टमक इन डाइजेशन. इन डाइजेशन, role of stomach in digestion. Number one, role of stomach in digestion. So not stomach, that is I'm so sorry, mouth or buccal cavity or oral cavity. Now that is oral cavity में क्या होता है दोस्तों, oral cavity contain, और oral cavity यानी buccal cavity याद रखो. oral cavity contain दोस्तों teeth and tongue. दो important structure है. oral cavity contains teeth and tongue. teeth and tongue याद रखो. नाउ ये जो टीथ होते हैं दोस्तों, दे हेल्प इन मैस्टिकेशन ऑफ फूड. मैस्टिकेशन मींस ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर फूड पार्टिकल इनटू स्मॉलर वन. तो इसका रोल क्या है दोस्तों, ये जो टीथ होते हैं, टीथ हेल्प इन मैस्टिकेशन ऑफ फूड. मैस्टिकेशन मींस where the larger molecule are broken down into smaller one. It causes mastication of food. म्हणजे mastication का मतलब होता है दोस्तों, लिख के देता हूं. mastication means larger molecule. बगा ये बगा तुम्हें larger, हर बार आपको जब भी खाना खाओगे तो ये याद आना चाहिए कि क्या हो रहा है मेरे oral cavity में. Teeth are responsible for, okay, mastication means larger molecules are broken down. इसको पीस छोटे छोटे मॉलिक्यूल ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर वन, ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर वन. ये कर रहा है टीथ. यस और नो, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स. दिस इज द रोल ऑफ टीथ. नाउ टंग क्या करता है दोस्तों, टंग अलोंग विथ सलाइवा, जो टंग है दोस्तों, टंग इट हेल्प इन दोस्तों, दैट इज अ मिक्सिंग ऑफ फूड. मिक्सिंग ऑफ फूड उसको कहा है गया है दोस्तों, एडेरिंग. शब्द यूज क्या है, एडेरिंग. मिक्सिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स, मिक्सिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स. ओके, मिक्सिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स टू फॉर्म दोस्तों, टू फॉर्म दैट इज बोलस, टू फॉर्म बोलस. नाउ ये बोलस का है, बोलस मींस इट इज द मास ऑफ फूड, इट इज द मास ऑफ फूड. और मराठी में इसे कहते हैं दोस्तों घास. मराठीत घास म्हणतात. ये टंग की वजह से पॉसिबल है. इट हेल्प इन मिक्सिंग ऑफ फूड पार्टिकल टू फॉर्म दोस्तों बोलस. ओके ओके, इट हेल्प इन मिक्सिंग ऑफ फूड पार्टिकल टू फॉर्म बोलस अलोंग विथ सलाइवा. ऐसा लिखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अलोंग विथ सलाइवा, अलोंग सलाइवा की मदद से, जो लाळ आहे लाळेच्या मदतीने, अलोंग विथ सलाइवा ऐसे लिखेंगे. Okay, it means tongue along with saliva. It help in mixing of food particles to form दोस्तों bolus. Bolus म्हणजे घास, mass of food. Now that saliva also causes lubrication of food. Lubrication means उसको जरा easily smooth बनाती है. Saliva जो है दोस्तों, that saliva causes, okay, saliva causes, that is saliva help in दोस्तों, saliva help in, that is okay, saliva help in, just wait, also help in lubrication means थोड़ा सा वो lubricate means smooth बन जाना.
ओके, ताकि फ्रिक्शन ना हो जाए, लुब्रिकेशन ऑफ फूड। नाउ और जो टंग है दोस्तों, सॉलोविंग को कौन मदद करेगा? सॉलोविंग, ये जो प्रोसेस है दोस्तों, जिसका नाम है सॉलो विंग, गिरने, चलो एक शब्द है, कोणी मला सांगतं का सॉलोविंग को एक शब्द है? कोई मुझे बता सकता है? सॉलोविंग को एक दूसरा शब्द है, कोई मुझे बता सकता है क्या? एनीवन, किसने पढ़ा है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन? क्या बात है यार, विष्णु श्रेय, श्रेय नाव है, सॉरी श्रेय, तुझं नाव दिसत नाही। डिग्लुटेशन, बहुत ही बढ़िया आर्नो, इनगल्फिंग सुद्धा म्हणतो, इंजेक्शन भी, पर एक विनय ने कहा है इसका दूसरा नाम है डिग्लुटेशन। क्या नाम है? डिग्लुटेशन, डिग्लुटेशन, सॉलोविंग और डिग्लुटेशन। सो दोस्तों आप मुझे बोल दो, इज इट टंग और इज इट टीथ विच हेल्प इन सॉलोविंग? कौन मदद करेगा? टंग और टीथ, आपके दांत रिस्पॉन्सिबल है या टंग रिस्पॉन्सिबल है फॉर सॉलोविंग? सोचो, ये क्वेश्चन आएगा। विच ऑर्गन है फेलिसिटेट दोस्तों सॉलोविंग? सिंपल सी बात है, सोचना है, बहुत बार कॉमन सेंस लगाना है। दैट इज टंग, एज इट इज अ मूवेबल एंड मस्कुलर ऑर्गन है। सो ये जो टंग है दोस्तों, टंग, टंग जो है, टंग फेलिसिटेट, मुझे मदद करना, फेलिसिटेट, फेलिसिटेट, फेलिसिटेट द सॉलोविंग, फेलिसिटेट द सॉलोविंग, और जिसका नाम है सॉलोविंग और डिग्लुटेशन ऑफ दोस्तों फूड। फूड इनटू कहां जाएगा? कहां जाएगा? स्टमक में जाता है? नहीं, इनटू द फायरिंग्स, इनटू द फायरिंग्स। सो ये मैकेनिकल प्रोसेस है दोस्तों, दो मैकेनिकल प्रोसेस है यहाँ पे। एक होता है ओरल कैविटी में, दो मैकेनिकल प्रोसेस आते हैं, एक है मैस्टिकेशन ऑफ फूड और दूसरा दोस्तों सॉलोविंग ऑफ फूड। ये याद रखो, ओके। मैकेनिकल प्रोसेस इन ओरल कैविटी, दो मैकेनिकल प्रोसेस होते हैं, मैकेनिकल प्रोसेस, प्रोसेस इन ओरल कैविटी और बकल कैविटी, दो इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर वन, दैट इज ओरल कैविटी क्या करता है? मैस्टिकेशन ऑफ फूड करता है, लार्जर मॉलिक्यूल आर ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉलर वन। और दूसरा है दोस्तों, दैट इज नंबर टू, सॉलोविंग ऑफ फूड, सॉलोविंग ऑफ फूड। खास करके याद रखो, सॉलोविंग ऑफ फूड खास करके मास्टिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल मेनली है टीथ, और सॉलोविंग के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है टंग। एक्चुअली दोनों एक दूसरे में मदद करते हैं। अगर टीथ मैस्टिकेट नहीं करेगा, मींस उसको स्मॉलर पार्टिकल में ब्रेक डाउन नहीं करेगा, तो थोड़े सॉलो हो जाएगा, नो डाउट, वो भी हेल्प करता है, पर दैट मूवमेंट ऑफ टंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉलोविंग और डिग्लुटेशन। आर यू गेटिंग मी और नॉट? और दोस्तों अगर क्वेश्चन आता है कि डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट इन, दैट इज माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, डाइजेशन ऑफ फूड इनिशिएट इन और इनिशिएशन ऑफ डाइजेशन ऑकर इन। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, दैट इज इनिशिएशन ऑफ डाइजेशन ऑकर इन, इनिशिएशन ऑफ डाइजेशन। आपका आंसर क्या है? कहां शुरू होगा डाइजेशन? मुझे बोल दो। माउथ, कहां पे? बहुत ही बढ़िया। अभी यहाँ पे माउथ और बकल कैविटी, ओरल कैविटी एक ही है, पर अगर एग्जैक्ट डिफरेंस पूछे तो ये जो स्लिट लाइक ओपनिंग है वो है माउथ, और अंदर वाली जो आ कैविटी है दैट इज ओरल कैविटी और बकल कैविटी। नाउ इनिशिएशन ऑफ डाइजेशन मींस डाइजेशन शुरू कहां पे होता है? तो बहुत सारे लोगों को लगता है अरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होता होगा, स्टमक में होता होगा, इंटेस्टाइन में होगा। गलत। इनिशिएशन ऑफ डाइजेशन ऑकर्स इन, इनिशिएशन में शुरुआत ऑकर्स इन दोस्तों माउथ, एमसीक्यू, एमसीक्यू है या फिर बकल कैविटी और ओरल कैविटी। इनिशिएशन ऑफ डाइजेशन, तो ये तो हो गया मैकेनिकल प्रोसेस। इज देयर एंजाइमेटिक प्रोसेस ऑकर इन द ओरल कैविटी? कोई एंजाइमेटिक एक्शन है या नहीं? आपने पढ़ा है कोई एंजाइमेटिक एक्शन है दोस्तों? वेळ झाला, वेळ झाला, ओके थांबू आपण। शिवानी बेटा स्क्रीनशॉट। हाँ सर, सलाइवरी जूस, अरे सला कौन सा क्या बात है यार, आयुष, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अथर्वा, प्रतीक, सलाइवरी अमाइलेज, वाह। शैश, सलाइवरी अमाइलेज, वाह। कौस्तुभ, क्या बात है। ये इंटरेस्ट ना दोस्तों, ये इंटरेस्ट याद रखो। आज लग रहा है कि मुझे खूब सारा पढ़ना है, ये आपका इंटरेस्ट अगर 2 साल तक ऐसा ही रहा तो आपको जो आपका ड्रीम मेडिकल कॉलेज है वो मिल जाएगा, ये गारंटी है। ऐसा नहीं कि आपके पास टैलेंट नहीं है,
ऐसा नहीं कि आपके पास वो एबिलिटी नहीं है एमबीबीएस बनने की, ये नहीं है। दीज आर द मीन्स, ये फैक्टर नहीं है कि लोग एमबीबीएस नहीं बनते, कि बहुत सारे लोगों के पास ना वो कंसिस्टेंसी, वो प्रिझर्वरन्स नाही होत आहे, चिकाटी नसते तेवढी. लक्षात, चिटकून राहायचं आपल्या ध्येयाशी. काय जरी झालं, दुनिया इकडे तिकडे झालं तरी आपलं अभ्यास करत राहणं हे खूप कमी लोकांकडे असतं. ते पहिले एकदम मास्टर स्ट्रोक खेळतील पहिल्या 15 ओव्हर, आमच्या भाषेत सांगायचं झालं तर मॅचच्या खूप खेळतील आणि नंतर थकून जातील. तसं नाही करायचं. 2 वर्षाचा प्रवास आहे नीट क्रॅक करण्यापुरता. एकदम स्लो, स्टेडी, ॲक्युरेट आणि रोज काहीतरी इम्प्रूव्हमेंट झाली पाहिजे. इम्प्रूव्हमेंट हा शब्द नेहमी यूज करायचा. माझ्यामध्ये मागच्या आठवड्यापेक्षा ह्या आठवड्यामध्ये काय इम्प्रूव्हमेंट, बस इतना ही देखेंगे. आज हो गया बस. आज एक कॉन्सेप्ट सुनाता हूं आप. दोन गोष्टी सांगतो, जरा लक्ष द्या. झालं का? हे क्लिअर आहे? आणि मग एमसीक्यू ऑफ द डे घेऊया. जाऊ नका कोणी, थांबा जरा, ऐका जरा. बघा, रियालिटी सांगतो, काय वेगळं सांगत नाही, पण रियालिटी सांगतो. 2 मित्र होते, एकाचं नाव आहे राम आणि दुसऱ्याचं नाव आहे श्याम. हे 2 मित्र आहेत, राम आणि श्याम. जरा लक्ष द्या, राम आणि श्याम. हा जो राम आहे, श्याम म्हणजे श्रीकृष्ण, श्याम त्याचं नाव श्याम असं म्हणतात त्याला. हा जो राम आहे ना, समजा तुमच्याच वयाचे 2 मित्र आहेत, लक्षात ठेवा. पण हा जो राम आहे ना, हा एकदम आज्ञाधारक आहे. घरचे सांगतील ते, बाहेरचे सांगतील ते, सगळ्यांचं ऐकणार. कोणी काम सांगितलं लगेच करून देणार, ठीक आहे, सगळे कामं करणार, त्याच्याकडनं कोणी पण काम करून घेणार. आलं लक्षात? आणि लोक त्याचं खूप नाव घेतात, खूप नाव घेतात. ठीक आहे, त्याला वा वा, हा खूप राम खूप चांगला आहे, सांगितलं तेवढं काम ऐकतो. शेजारचे, गल्लीतले सगळे लोक रामचा एकदम वाह 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 करतात, कारण की राम स्वतःचा सगळा टाइम हा दुसऱ्यासाठी डिवोट करत असतो, दुसऱ्याला देत असतो. आलं लक्षात? हा राम. हा श्याम तसा नाही. हा श्याम, आलं लक्षात, हा अगोदर त्याचा जो टाइम आहे तो स्वतःला देतो. आणि जर का वेळ मिळाला तर, आणि खूपच इम्पॉर्टंट काम असेल तरच तो स्वतःचा टाइम दुसऱ्याला देतो, नसता तो त्याचा टाइम दुसऱ्याला देत नाहीये. बाहेरच्याने, शेजाऱ्याने कोणी काम सांगितलं तर तो सरळ म्हणतो नाहीये, मला माझं काम आहे. लक्षात, थोडस मी जाऊ शकत नाही. तो ॲरोगंट नाहीये, तो उद्धट नाहीये, तो प्रामाणिकपणे सांगतो की नाहीये, मला माझं काम आहे, मला करायचं आहे, ते अभ्यास आहे, क्लास आहे. आणि हा राम मात्र कोणी काय सांगितले, हो जातो, हो आणतो, हो जातो, हो जातो. मग काय फरक आहे आयुष्यामध्ये? 10 वर्षानंतर कोण पुढे जाईल, राम का श्याम? कोण पुढे जाईल? हा राम. श्याम जो आहे हा ना नो बोलायचं शिकलेला आहे जगामध्ये लोकांना, नो. आणि हा जो राम आहे प्रत्येकाला यस यस यस, याला वाटतं मी सगळ्यांचं सगळं करू शकतो, सगळ्यांचं काम. आणि याला लोक अप्रिशिएट पण करायला, सध्या ह्याला लोक अप्रिशिएट करायला लागलेत, खूप नाव घ्यायला आहेत. आणि ह्याला सध्या लोक, ठीक आहे, शिव्या द्यायला लागलेत, नाही स्वार्थी मुलगा आहे, काय ऐकत नाही कोणाचं, ॲरोगंट आहे, बिलकुल काम ऐकत नाही. हो तो मुलगा तर ह्यांचा, हा त्या काकूचा, कुलकर्णी काकू किंवा काय जे आहे, साबळे काकू काय जे असेल, आलं कदम काकूचा मुलगा, तुम्हाला अहो काम सांगून बघा, तो चक्क नाही म्हणतो तोंडावर. लोक ह्याला शिवाय देतील आता. आणि ह्या रामला लय डोकं. आणि तो राम बघा, तो राम, ओके, ठाकरे काकूंचा, तो मात्र बघा, त्याला काम सांगत जातात, तो काही पण काम करतो. बर, आफ्टर 10 years हु विल बी द सक्सेस? लाईफ मध्ये कोण पुढे जाईल, राम का श्याम? तुम्हाला काय वाटतं? साधी गोष्ट आहे मुलांनो, श्याम स्वतःला वेळ द्यायला लागलाय. श्यामने एक कॉन्सेप्ट आपला केला, त्याला कॉन्सेप्टला नाव आहे, दॅट इज अ टाइम ब्लॉकिंग म्हणतात ह्याला. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम ब्लॉकिंग. जो 24 hours बाय 7, 24 hours आहे, त्यांनी ब्लॉक केलेलं आहे त्याला. 6 तास लेक्चरला गेले, 6 तास सेस्टरला गेले, 7-8 तास झोपायला गेले, बाकीच्या कामात उरलेले तास. माझ्याकडे वेळच नाहीये. तो काय एखाद्याला काम नाही सांगून तो काय टीव्ही बघत बसलेला नाहीये, तो त्याचं काम करताय. आणि ह्याच्याकडे 24/7 आहेत, पण कोणी आलं की हा बोलायला रेडीच आहे. ओके, अवेलेबल आहे. तुमच्या भाषेत सांगायला झालं तर अवेलेबल आहे.
आणि 10 वर्षानंतर लोक बोलतील काहीच केलं नाही ह्या राम आयुष्यात. आलं ना नीट क्रॅक केली, ना JEE क्रॅक केली, ना काहीच केलं नाही. पण श्याम बघा, हा महाराष्ट्रात पहिला आला, एम्स मध्ये शिकतो, आता खूप मोठा डॉक्टर झालाय, लोक याला अप्रिशिएट करतील. म्हणून छोट्या छोट्या गोष्टीला तुम्हाला आता अप्रिशिएट करत असतील तर मुलांनो त्याला बळी पडू नका. लक्षात, स्वतःचा टाइम ब्लॉक करा. हे 2 वर्ष अतिशय महत्वाचे आहेत रे. ब्लॉक करा. आई वडिलाचे बरं जर खूपच महत्वाचं काम असेल, मी सर तुम्ही म्हणता सर काय सांगायला लागले, आई वडिलाचं पण काम ऐकू नका, खूपच महत्वाचं आहे तर करा. आणि छोट्या छोट्या गोष्टीत ना म्हणजे करा असं मला म्हणत नाही, पण त्यामध्ये जास्त गुंतून नका पडू. लक्षात ठेवा, घरचं एखादं काम असेल त्यामध्ये तुम्ही काही जास्त रोल तुमचा नाहीये तिथं. ओके, तुम्ही तिथं निर्णय घेऊ शकत नाही, काय नाही, म्हणून तुम्ही निर्णय इकडे घेऊ शकता PCB मध्ये. तर इकडं तुमचा टाइम द्या, इकडं तुमचा टाइम द्या. आणि सगळ्यांकडे 24 आवर्स असतात एका तासामध्ये. पण लक्षात ठेवा, प्रत्येक जण कसा यूज करतो त्याच्यावर डिपेंड आहे की तो 10 वर्षानंतर कुठं असणार आहे. तुम्ही मला सांगा, ओके, की हाऊ यू यूज युअर 24 hours and I will tell you where you reach in life after 10 years. तुम्ही मला सांगा, मी असे 10 तास यूज करतो सर, असे 24 तास, मी तुम्हाला सांगतो तुम्ही कुठपर्यंत जाऊ शकता. तर हे टाइम ब्लॉकिंगचा कन्सेप्ट अप्लाय करायचा आजपासून. टाइम ब्लॉक. आणि मग टाइम ब्लॉकला जसं लेक्चरचा टाइम तुमचा ब्लॉक झाला तसा सेल्फ स्टडी ना बाकीचा टाइम ब्लॉक करून टाका. सकाळी मॉर्निंगला फिजिक्स, इव्हिनिंगला केमिस्ट्री, नाईटला बायोलॉजी. फिनिश. मॉर्निंग फिजिक्स, इव्हिनिंग तुम्हाला जे पसंत ते असेल ते. आर यू गेटिंग मी ऑर नॉट? हे अतिशय महत्वाचं आहे, हे अतिशय महत्वाचं आहे. हा, बी सेल्फिश. बी सेल्फिश. कशासाठी? पैशासाठी बोलत नाही. फॉर युअर टाइम, फॉर युअर टाइम. ओके, फॉर युअर टाइम. कोणी चॅटिंग तिकडे हाय केलं की इकडे आपण 10 हाय पाठवतो. त्याने नुसतं हाय केलं, हाय की आपण इकडे असं करतो, जणू पळून चाललाय, मंगळावर निघालाय लगेच पुढचा माणूस. हाय 2 मिनिटात नाही केलं की हॅलो हॅलो, 3 मिनिटात नाही केलं की हाव आर यू. त्याने नुसतं एखाद्याने हाय करूया. बंद करा ह्या गोष्टी. तिकडं तुम्हाला प्रोटीनला हाय करा, तो सांगेल आय एम मेड अप ऑफ, तो हाय म्हणणार नाही, तो सांगेल आय एम मेड अप ऑफ अमायनो ऍसिड. तुम्ही इकडे पॉलिसॅकराइड स्टार्चला हाय म्हणा, हाय स्टार्च. स्टार सांगेल आय एम मेड अप ऑफ अल्फा ग्लुकोज. तुम्ही तिकडे सेल्युलोजला हाय म्हणा, सेल्युलोज सांगेल आय एम मेड अप ऑफ बीटा ग्लुकोज. ग्लायकोजनला सांगा आय एम प्रेझेंट इन लिव्हर अँड मसल. इनको दोस्त बनाओ, लाइफ बदल जाएगी आपकी. थैंक यू सो मच. थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय. मिलते हैं 1:15 बजे. तो याद रखो ये, ठीक है. संडे का टेस्ट टॉपिक है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के ऊपर टेस्ट लेंगे हम इस बार. डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के ऊपर टेस्ट लेंगे. और कल से दोस्तों, कल से डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के ऊपर DPP शुरू कर देंगे. ठीक है, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के ऊपर DPP शुरू कर देंगे. मॉर्निंग में एक DPP आएगी सुबह सुबह, वो होगी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के ऊपर. ओके, और जो इवनिंग में DPP आएगी रात को, वो होगी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर. इज दैट ओके? हाँ, ऐसा टाइम रखेंगे. तो आपको पता होना चाहिए कि मॉर्निंग में कौन सी DPP है और इवनिंग में कौन सी DPP. ठीक है, थैंक यू सो मच. थैंक यू. ओके. हा, एक पायलोरिक स्पिंक्चरची स्टोरी सांगतो, लक्षात ठेवा. पायलोरिक स्पिंक्चरची स्टोरी अशी आहे की लक्षात ठेवा, हे आहे इसोफेगस, ये है दोस्तों स्टमक, और ये स्टमक में ये है जिओडेनम, और यहाँ पे होता है स्पायलोरिक स्पिंक्चर. लक्षात ठेवा, आमची ना सर्जरीची पोस्टिंग चालू होती आणि डॉक्टर हिरगुडे सर हे पिडियाट्रिक सर्जन आहेत, त्यांचं MCH झालेलं आहे आणि ते पिडियाट्रिक सर्जन आहेत CPR हॉस्पिटलमध्ये कोल्हापूरला. आणि मग आमची सर्जरीची पोस्टिंग चालू असताना इंटर्नशिपला एक आई आली पीड्सच्या वॉर्डमधनं, पीड्सच्या तिकडून पीड्सच्या डिपार्टमेंटमधनं सर्जरीच्या डिपार्टमेंटमध्ये, आणि तिनं सांगितलं की तो जो बाळ, एक छोटंसं बाळ तिच्या हातामध्ये होतं, आणि तिनं सांगितलं की सर, तिची कंप्लेंट अशी होती की ह्या बाळानं ना दूध पिलं, आज ह्याचा पहिलाच दिवस आहे. ओके, म्हणजे त्याला 24 तासच झालेले आहेत जन्म होऊन. ठीक आहे, खूप झालं, दुसरा दिवस समजा, आणि 24 तासामध्ये ह्यांनी दूध पिलं की याला उलट्या होणार. सर म्हणले बर. मग सर म्हणले तुम्ही त्याला प्रॉपर असं झोपवलं का खांद्यावर, कारण ते प्रॉपर डायजेशन होतं मिल्क? ते म्हणले ते सगळं केलं. ठीक आहे,
दूध पेलं की ते पेलेलं दूध लगेच एक 5-10 मिनिटातच वापस यायला लागलं आणि तिच्या डोळ्यामध्ये असं पाणी आले त्या माऊलीचे, त्या आईचे. ते छोटस बाळ ते असं बघायला इकडे आलं. ठीक आहे, काय प्रॉब्लेम नाही. सरांनी चेक केलं, त्याला एक्झामिनेशन केलं. सर म्हणजे प्रॉपर याचं एकदा यूएसजी करून घेऊया आपण. यूएसजी म्हणजे अल्ट्रासोनोग्राफी, आणि काही टेस्ट करावं लागते. लक्षात ठेवा. आणि मग त्या बाईला पाठवून दिलं तिथे. सर म्हणले तुम्हाला काय, आम्ही अशी केस आली काय की आम्ही ते इंटरेस्ट सर काहीतरी सांगणार आहात, काहीतरी आज नवीन शिकायला. तुम्हाला काय वाटतं काय झालं असेल? मग कोणी विचार केला की त्या बाळाला इन्फेक्शन लगेच झालं असेल, किंवा प्रॉपर दूध पाजत नसेल, प्रॉपर त्याला ते हे करत नसेल, आई पोजिशन मध्ये ठेवत नसेल, म्हणून झालं असेल. सर म्हणले सब गलत. ये जो बच्चा है ना, इस बच्चे का पाइलोरिक स्पिंक्चर जो है उसको स्टेनोसिस हुआ है. स्टेनोसिस मीन्स नैरोविंग. पाइलोरिक स्पिंक्चर इसका बंद है. सरांनी एक प्रश्न विचारला की फक्त दूधच येत आहे का, काही पिवळं वगैरे अन्न पण येतंय, पिवळं वगैरे दुसरं काही येतंय का, पांढरं फक्त दूधच येतंय? पांढरं येतंय बाहेर का पिवळं पण येतंय? ती आई स्पष्ट म्हणली फक्त पांढरं दुधासारखं बाहेर येतं, पिवळं काहीच येत. बर. आणि मग सर म्हणले दिस इज अ केस ऑफ, गेस आहे म्हणजे उद्या टेस्टिंग नंतर कळ, पण दिस इज केस ऑफ पायलोरिक स्टेनोसिस. पायलोरिक स्टेनोसिस मध्ये काही पर्सेंट बच्चों मध्ये जन्मल्याच हे पायलोरिक स्पिंक्चर हे बंदच असतं, नॅरो झालेलं असतं. स्टेनोसिस मीन्स नैरो, ये ऐसा है तो ये ऐसा बन जाता है, और यहां से जो मिल्क ले रहा है बच्चा वो नीचे नहीं जाता डिओडेनम में, यहां से ही वापस आ जाता है माउथ में, क्योंकि वो नीचे नहीं जा रहा है. तो सरांनी प्रश्न विचारला पांढरं पाणी येतं का पिवळं? जर पिवळं जर येत असतं तर लक्षात ठेवा डिओडेनम में ओपन होता है बाइल. बाइल थोड़ा सा येलोइश और येलो ग्रीनिश कलर का होता है, तो थोड़ा सा वो ग्रीनिश या फिर येलोइश आ रहा है, थोड़ा सा ग्रीन येलो, तो मतलब वो जो फूड आ रहा है वो डिओडेनम से आ रहा है. जो वोमिटिंग से फूड आ रहा है वो डिओडेनम से आ रहा है, और उसमें ना येलो ये कुछ भी कलर नहीं है. और जब सिर्फ मिल्क वापस आ रहा है तो इसका मतलब वो स्टमक से आ रहा है, और ये स्टमक से आ रहा है इसका मतलब ये डिओडेनम में गया नहीं है. तो दिस इज अ क्लियर कट केस ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस. और फिर वो देखा, दूसरे दिन वो आई सब टेस्ट लेके, तो सही में वो पाइलोरिक स्टेनोसिस था. फिर सर ने एक ऑपरेशन ऑपरेट उसका रख दिया. सर बोले आप आ जाओ, एडमिट हो जाओ, एक ऑपरेट करेंगे. तो इसको डायलेट वगैरह किया जाता है, थोड़ा सा ऑपरेट करके प्रॉपरली डायलेट किया जाता है बच्चों. और फिर वो बच्चा उसको इसका जो उसने जो दूध लिया है वो डिओडेनम में जाके उसका स्टमक में डिओडेनम में जाके प्रॉपरली डाइजेशन. सो ये पाइलोरिक स्टेनोसिस ऐसे भी होता है दोस्तों, और ऐसी केस मैंने देखी थी. तो ये आपको पता होना चाहिए, मुझे लगा ये जो मैंने केसेस देखे हैं मेडिकल साइंस में. थैंक यू सो मच. थैंक यू. कार्डियक स्पिंक्चर ओपन होता है. ओके. दोनों साथ में नहीं, दोनों साथ में नहीं भेजेंगे, कंफ्यूज हो जाओगे. ओके, दोनों साथ में नहीं, एक माइंड सेट रखें. मैं जो बोल रहा हूं ना वो अपने मन से कुछ भी मत करो. ठीक है, मन से करोगे ना तुम्हाला एक स्टोरी, आता उद्याच्या संध्याकाळी याला सांगतो, दुपारच्या लेक्चरला स्टोरी सांगतो, स्टोरी ऑफ समंदर, स्टोरी ऑफ समंदर, त्याच्यातनं सांग मनाने करायचं का कसं करायचं, लक्षात ठेवा जरा. ठीक आहे, तुमच्या मनाने काहीच नाही, कम्फर्टच्या बाहेर या. कम्फर्ट मध्ये राहून ना बीएमएस सुद्धा भेटणार नाही, बीएचएमएस सुद्धा नाही. कम्फर्ट झोन, कम्फर्ट झोनच्या बाहेर या आणि जे सही आहे ते करा, जे तुम्हाला योग्य वाटते ते नाही. यू डोंट नो द मेथड हाऊ टू क्रॅक नीट, यू डोंट नो इट. ओके, तुम्हाला माहित नाही त्या गोष्टी कसं क्रॅक करायचं. मनाने काही एक करू नका. अभ्यास करताना मला एक सकाळी सकाळीच फोन आला, सर मी असं असं करतोय, दर्शन चौधरीचा, मला खूप बढिया वाटलं, करायला पाहिजे का नाही. मग मी त्याला सांगितलं असं करायला पाहिजे. ओके, मनाने करू नका. 2 वर्ष प्रिसियस आहेत. ठीक आहे, लाईफ चेंजिंग मोमेंट आहे हे, इथं सगळं चेंज होणार आहे. ठीक आहे, थँक्यू सो मच. शुद्ध मराठी भाषेत मनचा कारभार नको. एमसीक्यू ऑफ द डे, वेळ झालेला आहे मला असं वाटतं, का घेऊ? आहे वेळ तुमच्याकडं? लोकेशन ऑफ गॉल ब्लॅडर, जस्ट पाश्चर पॉइंट द टर्म, पाश्चर पॉइंट द टर्म व्हायरस, यही लिखू. एमसीक्यू ऑफ द डे घेऊ. ठीक आहे, चलो. बरं, हे रामश्यामचं कळालं तुम्हाला? रामश्यामचं कळालं? टाइम ब्लॉकिंगचा कॉन्सेप्ट आहे तो, वेगवेगळ्या प्रकारे टाइम ब्लॉक करतात. आलं लक्षात? ते महत्वाचं आहे. आलं लक्षात? मी म्हणत नाही त्याच्यामध्ये तुम्ही ॲरोगंट व्हा, पण आपल्या टाइमला जास्त किंमत द्या दुसऱ्यापेक्षा. आलं लक्षात?
माझं लेक्चर चालू आहे आणि कोणी जर मला म्हणत असेल की ये आपण भेटूया, ठीक आहे, माझा मित्र आला की मी त्याला म्हणतो थोडंसं थांब, माझं लेक्चर झाल्याच्या नंतर आपण भेटूया. बरोबर आहे का नाही? तुम्ही एक सर्जन, तुम्ही शिकताय टाइम ब्लॉकिंग पण आज शिकत नाही. तुम्ही एक मोठे सर्जन झालाय, न्यूरोसर्जन झालाय आणि एक ऑपरेटर आहे आणि तुमचा एक खूप जुना मित्र आलाय यूजीचा किंवा शाळेतला, तुम्ही त्याला सांगतात की एक सर्जरी अर्जंट तेवढी करून आलो, पुन्हा आपण भेटूया इव्हिनिंगला. ते म्हणतो हो. लोक रेडी आहेत थांबण्यासाठी, पण आपल्याला ते शिकता आलं पाहिजे, हे महत्वाचं. एमसीक्यू ऑफ द डे घेऊया. बनवत चला एमसीक्यू ऑफ द डे, पाठवत चला एमसीक्यू ऑफ द डे, तुम्ही बनवून मला पाठवत चला. ओके मुलांनो, हे महत्वाचं आहे. याच्यातनं मला कळतं की तुमच्या करेक्शन्स वगैरे मला करता येतील. डायजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में बात करते हैं दोस्तों, दैट इज एमसीक्यू बनाता हूं दोस्तों, दैट इज, चलो देखो, मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, थोड़ा सा अलग सा एमसीक्यू बना आज, कॉलम 1 एंड कॉलम, दैट इज finger like projections, finger like projection. Okay, irregular finger like projections. Okay, C-shaped structure, that is finger like foldings, finger like foldings. Number 4, J-shaped structure, irregular folds of mucosa. Finger like folding of mucosa. S-shaped structure, inverted. एवढा मोठा एमसीक्यू येत नाही, पण माहित असेल इन्व्हर्टेड व्ही शेप स्ट्रक्चर. तुम्ही जोड्या लावायच्या, बघूया. 1 2 3 4 5 6 7. नंबर 1, हा जोड्या लावायच्या आपल्याला. नंबर 1 दॅट इज, नंबर 1 दोस्तों दॅट इज पार्ट ऑफ कोलॉन, पार्ट ऑफ कोलॉन ए. बी दैट इज, बी है दोस्तों दैट इज रोगे, बी है रोगे, रिश्ते कर. सी, सी है दोस्तों दैट इज सल्कस टर्मिनालिस, सल्कस टर्मिनालिस. डी है दैट इज विलाय. ई है दैट इज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. ए बी सी डी ई. एफ है दोस्तों दैट इज स्टमक और जी है डिओडेनम. चला बोला, आता कसं सांगायचंय? आता तुम्हाला सांगतो, हे लिहायचंय, तुम्ही काय करू नका, तुम्ही जस्ट फोकस करा. नाही नाही, मी सांगतो तसं करा. याला आता मी काय, बरं हे काय, तुम्ही मला काय सांगतो, हे इकडे काय आहेत? दीज आर द कॉलम 1 में मैंने दिए हैं शेप्स, शेप्स ऑफ स्ट्रक्चर. जो स्ट्रक्चर है उनके शेप्स यहाँ पे दिए, शेप. और यहाँ पे दोस्तों दीज आर द
parts of digestive tract. These are the past part of digestive tract. समझे आप? तो सभी शेप एक जगह पे। तो ए का क्या आंसर है वो मुझे बोलो, मैं यहां पे लिखूंगा इसे ए, इसके सामने ऐसे लिखूंगा कि ये ए है। चलो बोलो ए का क्या आंसर है? दैट इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। बोलो क्या बात है आयुष, वाह आयुष, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बहुत ही बढ़िया। रोहन सबको पता है, अथर्व फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते दोस्तों विलाय, तो इसका आंसर है डी, ऐसा लिखना है डी। नाउ शी शेप्ड स्ट्रक्चर क्या है? सी शेप्ड स्ट्रक्चर, टू का क्या आंसर है? डिओडेनम, डी इज द आंसर, डिओडेनम। डिओडेनम ऐसे होता है, डिओडेनम का डी लिख लिया मैंने यहाँ पे, नहीं डिओडेनम यहाँ पे जी के सामने है, डिओडेनम यहाँ पे जी के सामने है। फिर दोस्तों फिंगर लाइक फोल्डिंग ऑफ म्यूकोजा क्या है? फिंगर लाइक फोल्डिंग क्या है? फिंगर लाइक फोल्डिंग ऑफ म्यूकोजा, क्या आंसर है इसका? तीन का आंसर बोलो। दैट इज विलाय, बहुत ही बढ़िया विलाय, विलाय। सी शेप्ड स्ट्रक्चर डिओडेनम है, फिंगर लाइक फोल्डिंग ऑफ म्यूकोजा विलाय है। जे शेप्ड स्ट्रक्चर क्या है? नाम बोलो, नाम बोलो क्या है? जे शेप्ड स्ट्रक्चर है स्टमक, यफ। दोस्तों 5 इरेगुलर फोल्ड ऑफ म्यूकोजा, नाम बोलो इरेगुलर फोल्ड ऑफ म्यूकोजा। 1 का आंसर, हाँ सामान पता है मुझे, इरेगुलर फोल्ड ऑफ म्यूकोजा क्या है दोस्तों? रूगे, दैट इज इरेगुलर फोल्ड ऑफ म्यूकोजा। क्या है इरेगुलर फोल्ड ऑफ म्यूकोजा? दैट इज अ रूगे। कहां पे रूगे? बी, बी। नाउ यस शेप्ड स्ट्रक्चर, इसका क्या है आंसर? यस शेप्ड स्ट्रक्चर दैट इज पार्ट ऑफ, सृष्टि जस्ट वेट बेटा, जस्ट वेट, पार्ट ऑफ कोलॉन, ये सिग्मॉइड कोलॉन है, यस शेप्ड स्ट्रक्चर ये। नाउ इन्वर्टेड वी शेप्ड स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों? इन्वर्टेड वी शेप्ड स्ट्रक्चर क्या है? सी। तो फर्स्ट बराबर है क्या? फर्स्ट बराबर है? फर्स्ट का आंसर सही है क्या? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नहीं, क्या होना चाहिए? वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, दैट इज ई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ई। नाउ दिस इज द आंसर। ये है क्वेश्चन, इसका नाम है दोस्तों मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। ये बहुत फेमस एमसीक्यू आते हैं, बहुत ही फेमस। फिर पूरे इससे मैंने क्या कर दिए, ये शेप है, लिखो वॉल ऑफ बायोलॉजी के ऊपर, इसको बनाओ वॉल ऑफ बायोलॉजी के ऊपर। ओके, शेप ऑफ जीआईटी लिखो ये सब, ठीक है? समझे आप? थैंक यू सानिका। किसने बोला? ओके, वेस्टिजियल नहीं है, नॉन, मैंने बोला था सर, आपने पढ़ा है। क्या बोला था स्वराज आपने? क्या बोला था? ओके, थैंक यू शिवानी बेटा, थैंक यू। फर्स्ट कैपेटिक्स, थैंक यू स्वराज, थैंक यू। तो दोस्तों यहां से हमें क्या मिल गए? अब तक के पूरे शेप मिल गए, अब तक के पूरे शेप मिल गए सब स्ट्रक्चर के, यस और नो? तो थैंक यू सो मच। दिस इज एन मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। ये भी एमसीक्यू बनने की प्रैक्टिस शुरू कर दो, और आज से फिर सब मुझे एक एमसीक्यू बनाओ, सिर्फ एक। और वो एमसीक्यू बनाने के लिए कुछ अलग से बैठना नहीं है, जब आप पढ़ रहे हो तभी सोचो, तो इस आपकी सोच ऐसी बननी चाहिए, इसलिए मैं एमसीक्यू ऑफ द डे। थैंक यू सो मच, थँक यू। ओके, आणि ऍडमिशन करून घ्या, तुम्हाला टेस्ट देता येतील, डीपीपी देता येतील। आपण आता डबल डीपीपी सुरू करतो, तर तुम्हाला ते देता येणार नाही जर का तुमचं ऍडमिशन नसेल तर प्रॉपर ऍडमिशन करून घ्या। तुम्हाला नोट्स घेऊन जा, प्रॉपर एआयबीचं स्टडी मटेरियल आहे, प्लॅनर आहे, चॅलेंजर आहे, ते बुक आहे प्लॅनर आणि चॅलेंजर, ते घेऊन जा। आणि सर्वात जास्त इम्पॉर्टंट आहे की प्रॉपर एक वे ना डायरेक्शन आपण काम करायला, नसता मग असंच चालतं, हे करावं का ते करावं, हे करावं का ते करावं, आणि त्याच्यामध्ये मग प्रॉपर कुठलीच गोष्ट होत नाही आणि वेळ चाललो निघून, ठीक आहे, वेळ निघून जातो। थँक्यू सो मच। तर उद्यापासून डायजेशन आणि ऍब्झॉर्प्शनच्या डीपीपी सुरू होतील, ते असतील मॉर्निंगला। तर आपण वेळ देऊया, तुम्ही त्या कधी सॉल्व्ह करू शकता, तुम्हाला वेळ मिळेल तसा।
मॉर्निंगच्या आवर मध्ये ठेवूया आणि इव्हिनिंगला म्हणजे रात्री 8 नंतर कुठल्या डीपीपी असतील दॅट विल बी ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. समजतंय? थँक्यू सो मच. थँक्यू. ठीक आहे. ऑफिस ओपन आहे बेटा. ऑफिस ओपन उद्या. ठीक आहे. डक्ट ऑफ सॅन्टुरिनी देतात. थांबा आता तुमचे डाऊट्स घेतो. जस्ट वेट. थांबा जरा आता. डक्ट ऑफ सॅन्टुरिनी आता येतो का? आता येतोय? नो. आता येतोय का नाही? येतोय? बोला. विधी ते नॉन फंक्शनल आहे म्हणजे मेन फंक्शन नाही तसं काही, पण वेस्टिजियल नाही सर. व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन मॅस्टिकेशन अँड चिविंग? सारखंच आहे दोघांचं. चिविंग म्हणजे लक्षात ठेव चावणे, आणि मॅस्टिकेशन मध्ये ते चावून चावून लार्जर मॉलिक्युलचं ब्रेकडाऊन करणे. दॅट इज सेम आहे. मॅस्टिकेशन अँड चिविंग सेम. छान प्रश्न विचारला बेटा. आणखी विचारा जरा. सर मी विचारत होते की उद्या ऑफिसला ओपन आहे का? आहे बेटा, आहे. उन्मेष सांगितलं ना, आहे उद्या. चलो. इनिशिएशन ऑफ डायजेशन ऑकर इन माउथ और ओरल कॅव्हिटी विच इज मोस्ट ॲक्युरेट. तसं येणार नाही भूषण, पण ओरल कॅव्हिटी इज द आन्सर. सर ज्यांना डाउट नाही ते जाऊ शकतात. सर न्यू बैच कब से चालू होने वाले? कल से. बोलसच्या काम टंग करतं का? क्या बात है यार, किसने कहा है? बोलसला लोटायचं काम टंग करतं. आणि बोलस कुठं तयार होतं? बी फॉर बोलस, बी फॉर बकल कॅव्हिटी, क्योंकि स्टमक में एक स्ट्रक्चर. ओके हर्षल, बरोबर आहे हर्षल. बोलसला लोटायचं काम टंग करते ना. ये है डिग्लुटेशन. देखो किसकी स्टमक मध्ये ऑब्लिक लेअरचं काय फंक्शन आहे? पुष्कर फंक्शन हेच आहे की त्या स्मूथ मसल विच हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. तो मूवमेंट ऑफ स्टमक करता है. सर्कुलरिस, लॉन्जिट्यूडनल और ऑब्लिक का सभी का फंक्शन वही होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन. इससे फूड ना मिक्स होगा. कैन आई से द डक्ट ऑफ सैंटोरिनी एज एन एग्जांपल ऑफ? परत विचारा. स्टिप्स, वेयर इज द स्टिप्सिन मेड? पैनक्रियाटिक जूस में बनता है, पैनक्रियाज में मिलता है. स्टिप्सिन मीन्स पैनक्रियाटिक लाइपेज का दूसरा नाम है स्टिप्सिन. पैनक्रियाटिक लाइपेज का दूसरा नाम है स्टिप्सिन. पुढे. सर सलायामध्ये एन्झाईमचं नाव काय आहे? लायसोझाईम. लायसोझाईम आणि सलायरी अमायलेज हे दोन एन्झाईम आहेत. उद्याच्याला बोलूया त्याच्याबद्दल. उद्या एक जबरदस्त स्टोरी आहे, ऐक बघा तुम्ही आता उद्याच्याला. सर लुब्रिकेशन मीन्स, लुब्रिकेशन म्हणजे ऑइल केल्याच्या नंतर कसं, आता गाडीला कसं आपण लुब्रिकेट करतो, ब्रेक वगैरे असतात किंवा क्लच वगैरे आहे, तिथं ऑइलिंग कसं करतो? ऑइल केल्यावर त्याचं स्मूथ होते मुवमेंट. दॅट इज कॉल्ड द लुब्रिकेशन. एमसीक्यू ऑफ डेच्या स्क्रीनशॉट काढायचा आहे. सर व्हाइल इटिंग वी ऑल्सो रेस्पायर, हाऊ एपिग्लॉटिस फंक्शन ॲट दॅट टाइम? ओके. अरे स्वॉलोइंग, तिथं फूड गेल्याच्या नंतर ते क्लोज होतं तेवढ्या वेळापुरतं. आलं का लक्षात? तिथे गेल्याच्या नंतर थोडा वेळ बंद होऊन जातं ना ते. हवा रेस्पायर करून आपण तिथपर्यंत गेलेली, पण तिथून खाली जायचं की नाही हे डिसाइड वेगळं स्ट्रक्चर करतं ना. आपण इथंच फूड आहे तर इथं इपिग्लॉटिस क्लोज होईल असं नसतं, तिथं गेल्याच्या नंतर ते क्लोज होतं. न्यूमोनियामध्ये लंग्स मध्ये कुठून पाणी येतं? तिथं म्युकस सिक्रेटिंग ग्लँड्स असतात. ठीक आहे. त्या प्रत्येक सेलमध्ये पाणी बेटा, त्या सेलमधनं बाहेर येत असतं. प्रत्येक सेलमध्ये पाणी असतं. पैलेट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ओरल कैविटी. हाँ पर वो रूफ है तो डाइजेशन में उसका ज्यादा रोल नहीं है. स्क्रीनशॉट काढना. वो रूफ है तो डाइजेशन में रोल नहीं. या टंग मुएबल और मस्कुलर ऑर्गन आहे. थोरॅक्स कोणता पार्ट असतो? थोरॅक्स म्हणजे चेस्ट, हा पार्ट वरचा थोरॅक्स, चेस्ट. हा ॲब्डॉमन. त्याच्यामध्ये एक मसल त्याचं नाव डायफ्राम. व्हॉट इज द रोल ऑफ रुगे? रुगे इंक्रीजेस सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन. रुगे सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ाते हैं. सर
क्या नाही से डक्ट ऑफ सेंट्रल एक्झाम्पल ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन? नाही 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 नाही, विवेक चौधरी नाही. तो वेस्टिजियल ऑर्गन नाही, फक्त तिथे तेवढं जास्त काम करत नाही, थोडं बहुत काम करतो कम्पॅरेटिव्हली, पण तो वेस्टिजियल नाही. हा, एवढं जास्त काम करत नाही तो. बंद जरी पडला तरी एवढं काय होत नाही. फंक्शन ऑफ विलाय, विलाय ऑल्सो वहां पे एब्जॉर्प्शन होता है. हॉस्टोरिया, तो हॉस्टोरिया मैंने बताया था इसके पहले भी, शायद आपने पढ़ा नहीं होगा, कि लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर ऐसे फोल्डिंग्स होते हैं और इन फोल्डिंग को कहा जाता है हॉस्टोरिया. ये हॉस्टोरिया है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का फीचर है हॉस्टोरिया. सर ये भी बुक इज परफेक्ट टू स्टडी. यस, आप मुझे पूछ रहे हो या बता रहे हो सनवी? आर यू आस्किंग मी और आर यू टेलिंग मी? सर मी काय एमसीक्यू पाठवते आहेत, प्लीज चेक करा. हा ठीक आहे, पाठवा. आयलेट्स ऑफ लँगरहॅन्सचं फंक्शन काय? ओके, थँक्यू सनवी, थँक्यू. आयलेट ऑफ लँगरहॅन्स हे एंडोक्राइन पार्ट आहे ना पॅनक्रियाचा, तो एन्झाईम रिलीज करतो, इन्सुलिन आणि ग्लुकॅगॉन. थँक्यू सनवी. सर पॅनक्रिया इज अ लीफ शेप्ड ऑर्गन, असं म्हणता येणार नाही, म्हणू बी शकताय, पण लीफ सारखं नसतं, ते जाड असतं, लीफ शेप्ड नाही. ते मकाच्या कणसासारखं असतं. मकाचं कणीस का लीफ शेप्ड थोडंच आहे? अरे लीफ म्हणजे दोन्ही साईडला बायोलॅटरली फ्लॅट पाहिजे, पानासारखं. हॉस्ट्रिया नॉट प्रेझेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन. हा नाही होते बेटा शिवानी, दे आर अब्सेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन. हा, नम्रता राऊत बोला, बोला मॅडम. सर व्हॉट इज टॅक्सा? हा दर्शन, हा तू विचारला होता, टॅक्सा हा पुढचा पार्ट आहे, ते एवढं इझिली सांगता येणार नाही तुला टॅक्सा एक्झॅक्ट काय, पण एवढं सांगू शकतोस की कॅटेगरी असतात आणि टॅक्सॉन असे दोन शब्द आहेत, की 7 कॅटेगरीज आहेत: स्पेसिस, जीनस, फॅमिली, ऑर्डर, क्लास, फायलम अँड किंगडम. आणि टॅक्सा त्याच्या पुढच्या गोष्टी असतात. फॉर एक्झाम्पल, मी जर ह्युमन बिंगचं क्लासिफिकेशन घेतलं तर होमो सॅपियन, सॅपियन इज अ टॅक्सा, होमो इज अ टॅक्सा, होमिनिडी इज अ टॅक्सा, क्लास family hominidae, class mammalia is a taxa, order primata is a taxa, phylum chordata is a taxa, kingdom animalia is taxa. So ये जो आगे वाले होते हैं उसे taxa कहते हैं. There is a huge difference between taxon and category. तो आपके लिए इतना ही, this is the group of animal having some similar features, that is a taxon. They are included in a particular taxon. If Santo पहले फंक्शनल होते थे बेटा ये स्ट्रक्चर, अभी उनका इतना काम नहीं है. ऐसा नहीं होता है कि क्या काम होता है, थोड़ा थोड़ा काम, इतना ज्यादा नहीं होता है सैंटोरिनी का काम. बहुत ही अच्छी बात है कि सैंटोरिनी के ऊपर इतना सारा डिस्कशन हो रहा है. तो कुछ हम वी आर इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, तो धीरे 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 ये चीजें कम होती जाएगी. किसी ने तो भी एक क्वेश्चन पूछा था, प्लीज कॉपी पेस्ट कर लो, एक बार पूछ लो फिर से.